أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم۔ جلسے کے صدر بابرکات داعش کے تشریف فرما میرے رفقا اور اس جلسے کے ذمہ داران مکھیا جی، کمیٹی صاحب، ہمارے بھائی شفیق صاحب اور دیگر احباب، نسیم بابو، اور یہی ہے اور آپ کے حکم سے جو بات کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جلسہ آپ لوگوں نے مسجد کی نسبت سے کی اور انشاءاللہ ہمارے بڑے علماء تشریف لائیں گے، ان کی پرمغز گفتگو آپ لوگ سنیں گے۔ میں تو تین باتیں صرف مشورے کے طور پر اور اپنے محسوسات کے طور پر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ باقی جو لوگ ہیں بیٹھ جائیں گے، جن لوگوں کو کھڑے رہنا ہے بیٹا تو کھڑے رہنے کے لیے بازار ہے، یہاں جو لوگ بھی رہو گے بیٹھو بیٹھو، نہیں تو نکلو یہاں سے، یہاں بیٹھو نہیں تو نکلو یہاں سے، جس کو دقت ہے بیٹھنے میں سے نکل جائیں گے۔ جو ضروری باتیں اس وقت کہنے کے لیے آیا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جلسہ مسجد کی نسبت سے ہے، اور مسجد کیا ہے؟ ہم لوگ مسجد سمجھتے ہیں قبلہ رخ کا ایک مکان، اس کا ایک مینارہ، اندر میں منبر، اوپر میں گنبد و محراب، ایک شکل ہوتی ہے، قالین بچھی ہوتی ہے، امام باڑہ ہوتا ہے، ایک مسجد کی شکل ہماری۔ یہ ہماری نظر کا مسجد ہے۔ اللہ کے نزدیک مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی بنیاد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ ایک اچھی شکل ہم نے مسجد کی خوبصورت بنائی ہے، یقیناً ایک اچھی بات ہے۔ اور مسجد کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، انسان جو زندگی ہے، انسانی زندگی، وہ دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ میں اکثر مثال سے بات کرتا ہوں کہ میں اس وقت کھڑا ہوں، نہیں ہے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ میں کھڑا اس وقت ہوں تو میں اختر الایمان کھڑا ہوں۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اختر الایمان نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ اختر الایمان کی لاش پر ہے۔ یہ بات کہتے ہیں کن کی لاش ہے؟ حاجی صاحب کی لاش ہے۔ حاجی صاحب نہیں ہے، مکھیا جی کی لاش ہے، مکھیا جی نہیں ہے۔ یعنی دراصل جو شخصیت تھی وہ دراصل روح کا تھا۔ میرے بھائی، مسجد اللہ کے نزدیک کون سی پسندیدہ مسجد؟ ہمارے نزدیک پسندیدہ مسجد وہ ہے جس مسجد کو جس کا گنبد و محراب بہت خوبصورت ہو، قالین بہت تمیز ہو، خوبصورت ہو، مینارہ بہت اونچا ہو، سنگ مرمر کی دیواریں ہوں، مائک میں ٹن ٹن کی آواز ہو، 3 آدمی نماز پڑھنے آئے کم از کم، اور یہاں پر اذان دے تو کلا منی سیاں تک سنائی دے تو پتا چلے کہ نہیں ہماری مسجد سب سے اونچی ہوتی ہے۔ اور نمازی کتنے ہو تو نمازی کے بارے میں فکر ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ میرے بھائی، ہمارا اور آپ کا خاندانی سلسلہ ہے۔ ہمارا خاندان کس سے جڑتا ہے؟ میں اکثر گاؤں کے انداز میں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، میں جلسے میں تو میرے دوست مجھے بلا لیتے ہیں، آپ لوگ سیاسی اعتبار سے مجھے بلا لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے MLA تھے، ہمارے اس پارٹی سے دلچسپی رکھتے ہیں، تعلقات ہی بلا لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، خدا کے واسطے میں اپنے خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں جلسے میں اس نسبت سے کبھی نہیں آتا کہ کوئی سیاسی تعلق آپ سے ہے۔ میں جلسے میں اگر کبھی آتا ہوں تو دل میں ایک درد ہے جس کا احساس آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ درد کیا ہے؟ وہ درد یہ ہے
कि मस्जिद को मस्जिद के मुकाम के तौर पर समझा जाए। सिलसिले नस्ब कहते हैं खानदान के बाप के निस्बत से आगे के खानदान की तारीफ को। तो हमारा एक नसबनामा अगर तैयार किया जाए इंसान का, तो हम हैं मुझसे पहले मेरे बाप, उनसे पहले उनके बाप, उनसे पहले उनके बाप। तो ये रिश्ता बाप दर बाप जाकर किससे जुड़ जाएगा? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाएगा। तो मस्जिद की एक निस्बत है, ये मस्जिद भी जो वजूद में आई है इसकी भी एक निस्बत है। वो मस्जिद क्या है? हमारी मस्जिद, हमारे जिला की मस्जिद, हमारे मुल्क की मस्जिद, अल्लाह के नबी की मस्जिद और अल्लाह का घर काबा बैतुल्लाह, जिसके रुख से होकर सारी दुनिया की मस्जिद बनती है। यानी मस्जिद का असल रिश्ता काबा बैतुल्लाह से, और मस्जिद सजदा से है। सजदा के माने हैं इबादत के इरादे से सर को झुकाना। और आप देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहरीक, इस दुनिया, इस जुल्मत को नूर जो बख्शा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस बिगड़ी हुई बस्ती में जो इंसानियत का पैगाम, भटके हुए लोगों को हक की तरफ राह दिखाने का काम जो किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद से किया। आपको पता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के घर काबा बैतुल्लाह से कितनी मोहब्बत थी? आपको ऐसी मोहब्बत थी कि आप वहां बचपन से हाजिरी देते। और मामला यह है कि जब आप बस्ती की बुराइयों से परेशान होकर एक पनाह तलब करने लगे, कुछ सोच, कुछ गौर और फिक्र के लिए गारे हिरा में आप कुछ दिनों तक मुकीम रहे। क्या था अरब में? अरब में बुराई आम हो गई थी। क्या बुराई थी? हर ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता, अमीर गरीबों को दबाता। जिस तरह हम बाजारों में मवेशी बेचते हैं, बकरा बकरी गाय भैंस बेचते हैं, इंसानों को बाजारों में बेचा जाता। औरतें लौंडी कहलाती, मर्द गुलाम कहलाता। और बुराई किस कदर थी? बुराई इस कदर थी कि शराब हर घर में पीते थे लोग, सूद खाते, जुआ खेलते, और इस हद तक शर्मनाक सूरत हाल थी कि खाने काबा का नंगा तवाफ। बुराई इस कदर पहुंच गई थी कि लोग सौतेली माओं को अपनी बीवी बना लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुल्म, इस ज्यादती, इस बिगड़े हुए समाज से हटकर जब सोचने के लिए आपने पनाह लिया गारे हिरा में, तो आपने ऐसे गार को पसंद किया जहां से अल्लाह का घर काबा बैतुल्लाह सामने नजर आ रहा था। ये थी अल्लाह के घर से आपको मोहब्बत। अल्लाह के घर से आपको मोहब्बत थी ऐसी कि जब कुफ्फारा ने मक्का ऐलान नबूवत के बाद कुफ्फारा ने मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालना चाहा, आपके साथ अदावत की इंतहा कर दी, तो हुक्म रब्बी के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना का रुख किया। और आप ये देखेंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना का रुख किया तो मुड़ मुड़ कर जो देख रहे थे अल्लाह के घर को। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए और मदीना के करीब पहुंचे, तो आप एक जगह पड़ाव किया और वहां जाकर के जो आपने किया काम, वो क्या किया? मक्का से पहले एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूं, कि आपने जाकर वहां पर मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा बनाई। और मस्जिद कुबा, वो कुबा नाम से कुआं था वहां पर, और उसी से वो बस्ती मारूफ हो गई थी। और आपका चंद दिन का कयाम वहां रहा, तो आपने वहां पर मस्जिद बनाई। और फिर आप वहां से चलकर जब मदीना पहुंचे, तो आपकी ऊंटनी जाकर जहां बैठी, उस जगह को आपने खरीदा। और वहां पर जो यतीम बच्चों की थी, लोगों ने कहा, उनके जो सरपरस्त थे उसने कहा कि ये जमीन हम लोग यूं ही दे देते हैं अल्लाह के नाम से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक कीमत देकर, जिसकी कीमत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अदा की, आपने मस्जिद को खरीदा, जमीन खरीदी। और मदीना पहुंचने के बाद जो आपने काम किया, वो क्या काम किया? आपने उस वक्त एक लंबी चौड़ी लगभग 8-10 कट्ठे की लंबी मस्जिद आपने वहां पर तामीर की।
मस्जिद कैसी थी? मस्जिद थी पत्थर की दीवार, मिट्टी का गलेबा, खजूर के दरख्तों का खंभा, खजूर के पत्तों का छप्पर। और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते तो धूप की शिद्दत से पसीने से सराबोर होते, और जब बारिश होती तो मदीने की मस्जिद का जो सहन था वो कीचड़ हो जाता, आपके और आपके सहाबा के कपड़े सन जाते। और कहा जाता है कि 8-9 साल तक मस्जिद में चिराग नहीं जला था। लेकिन मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते अगर उस जमाने में भी तो सहाबा को दिन दूनी रात चौगुनी अल्लाह ने तरक्की अता फरमाई। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीना पहुंचे थे तो अपना कारोबार पनीर की दुकान शुरू की थी उसने जमीन पर, और चंद सालों में ऊंटों पर सामान रखकर आता था। आपको उस जमाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो मस्जिद नबवी के चंद सतून तो सोने और चांदी के बना सकते, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के सतूनों को सोने और चांदी का नहीं बनाया, बल्कि मस्जिद के नमाजियों का किरदार के मीनारे को इतना बुलंद किया कि जहां कोई साहबी रसूल जाता था वहां पर इस्लाम का एक मुबारक पैगाम लेकर जाता था। अंधेरे में रोशनी की किरण होती थी, जुल्म के खिलाफ एक इंसाफ का मीनारा होता था, और कमजोरों का एक सहारा होता था। ये तरबियत मस्जिद नबवी में। कैसे थी मस्जिद नबवी में? हमारी मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह है, और जो कहते हूँ बहू कहना क्या, अगर किसी का बाप घोड़ा था तो उसका बेटा घोड़ा है, उसकी नाक लंबी थी, पेशानी चौड़ी थी, बेटे का भी ऐसा है, आवाज भी उससे मिलती जुलती है, खाता पीता भी उसी तरह से है, ओढ़ता पहनता भी उसी तरह से है, तो हम क्या कहते हैं? ये लड़का हू बहू अपने बाप की तरह, कहते हैं ना, हू बहू अपने बाप की तरह। तो मेरी मस्जिद को भी हू बहू अल्लाह के मस्जिद, अल्लाह के रसूल की मस्जिद की निस्बत से होनी चाहिए, अल्लाह के घर के तौर पर होना चाहिए कि मेरे मस्जिद का जो तौर तरीका हो वो आदाब हो वही के हो। मस्जिद नबी में क्या किया आपने? मस्जिद नबी में सिर्फ नमाज पढ़ी, सिर्फ कुरान पढ़ा, सिर्फ जिक्र अस्कार किया? नहीं, मस्जिद नबी में आप कुरान पढ़े और कुरान समझाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गांव के झगड़ों को तय किया मस्जिद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह के तौर तरीके सिखाए लोगों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में लोगों को कारोबार के तरीके सिखाए। 2 साल अभी मदीना पहुंचने का हुआ था कि जंग बदर वाक़ हुआ, और बदर में जो कैदी थे पकड़ के लाए गए तो मस्जिद नबवी के खंभे में उसको बांध के रखा गया। और आप देखेंगे कि ईसाई आए, मुशरिक आए ताइफ के, और उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त जो गैर मुस्लिमीन थे, उनको मस्जिद के सहन में बैठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी। आपको यह भी खबर होगा कि लड़के ने मस्जिद नबी में पेशाब कर दी, और किस मस्जिद में की थी? ये हमारी और आपकी मस्जिद में नहीं की थी। काबा बैतुल्लाह के बाद जिस मस्जिद का मकाम है, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, उस मस्जिद में मस्जिद नबी में पेशाब कर, हम और आप क्या होते? गर्दन काट देते। लेकिन प्यारे आका ने क्या कहा? जब वो पेशाब कर रहा था तो साहब ने चाह के रोक दें उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मत रोको, उसे पेशाब कर ले। अब ये बात बताइए कि आधी पेशाब करता था भागता, एक तमाचा मारने भाग तो जाता वो लोग, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने दी, क्योंकि पेशाब करते वक्त आधे पेशाब में रुकने की जो तकलीफ होती है वो भी उस बच्चे को महसूस होने नहीं दिया। दूसरी हिकमत ये भी है कि पेशाब करते हुए बच्चे को आप अगर पीटते उस वक्त तो वो तो एक ही जगह नापाक किया था, पूरी मस्जिद को भी नापाक कर सकता था, ये हिकमत नहीं होगी। लेकिन प्यारे आका ने क्या कहा? उस बच्चे की कोई पिटाई नहीं की, और क्या किया? उस बच्चे को हल्की सी नसीहत कर दी कि बेटा ये इबादत की जगह है, यहां पर पेशाब करने की जगह नहीं है। साहबा को कहा पानी लाओ और इस पर बहा दो। उस बच्चे से ये भी नहीं कहा कि पानी लाके बहा दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। आप रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजेंगे, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेंगे। जानवरों के लिए भी रहमत, कि जिस जानवर को जबह करके आपको लिए हलाल किया अल्लाह ने, उसके लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किया कि तू जब अपने जानवर को जबह कर तो तड़पा तड़पा के जबह मत कर, बल्कि तेज छुरी से जबह कर, ताकि उसको तकलीफ नहीं हो।
आलमीन इस कदर कि आपने ये कहा कि जब तू एक जानवर को ज़बह करे दूसरा जानवर उसके सामने न रख के उसको तकलीफ होगी। मेरे भाई, ये मस्जिद नबी में आपने को सिखाया। मस्जिद नबी में क्या किया? जब लोग बीमार हो जाए तो हकीम बुलाकर वहां शेफा खाना लगाया गया। मस्जिद नबी में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग आपको तोहफे ताहफ ला कर देते तो आप हाजतमंदों के दरमियान में तकसीम कर देते। लेकिन जब कसरत से तोहफे ताहफ आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैतुल माल कायम किया ताकि गरीब और हाजतमंद लोगों को, मिस्किनों को और मुसाफिरों की उससे मदद की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी का संगमरमर का मीनारा नहीं बनाया, लेकिन अपने सहाबा को जिंदगी के उसूल सिखाए। और आप देखेंगे कि उसी मस्जिद नबी में आपने तैयारी कराई लोगों को, जंग की मशक़ें सिखाई आपने लोगों को। और मेरे भाई, वही मदीना था, उससे पहले यसरिब कहलाता था वो शहर। यहूदी जो थे तो यहूदी बड़े बेईमान, बड़े बदमाश, बड़े शरीफ, और आज भी शरारत कर रही है कौन अपने बाप दादा के सुन्नत पर। तो वो क्या हुआ कि मुसलमानों को बाजार में ठगा करते थे ये यहूदी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल बाजार बनवाया, और बाजार बनवाया तो सुन लीजिए जरा उस बाजार के वाक़े को। क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाजार के लिए जो नसीहत की है मस्जिद नबी में, वो सुनिए। कहा कि तुम्हें मदीना के यहूदी ठगते हैं, यसरिब के यहूदी ठगते हैं, तुम अपना अलग बाजार बनाओ। जब बाजार बनाया गया, एक दो दिन हाट लगी, बाजार लगा, तो बड़े लोग आकर के रुख की जगह को कब्जा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के कितने मसीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मिसवाक है और बांदी है। गुस्ताखी करी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फलानी, मैं तुझे इस मिसवाक से मारता अगर कल कयामत के दिन जवाबदेही का डर नहीं होता। यानी मिसवाक से भी अपनी बांदी को आपने नहीं मारा। लेकिन जब गरीबों के हक पर, जब ताकतवरों ने कब्जा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ, जगह किसी की छेका नहीं रहेगी, कमजोर ताजिरों को कोई दबा नहीं सकेगा, जिसने खेमा लगाया उसे आग लगा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब और कमजोरों की इतनी हमदर्दी करी। फिर क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नहीं बनाई, ये नहीं कहा कि पेशाब खाना सड़क पर बना दो, घर बना लो अपना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि देखो, बाजार की सड़क इतनी चौड़ी होगी कि दो ऊंट सामान में लद कर जाए तो एक का सामान दूसरे से न टकराए। और आज अगर ऊंट को लादते हुए देखा है आप लोगों ने, वो जो हम लोग कहते हैं वो खाना बदोश, जिसको देहाती जबान में कहते हैं, गश्त करने वाले फकीरों की जो जमात होती है, उसका घोड़ा देखा आपने जब कसता है तो पीठ कितनी चौड़ी होती है, 5-6 फीट हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन अगर ऊंट को ठीक से ये करे, सामानों से लादे, तो 10-12 फीट ऊंट की बदन भी चौड़ी हो जाती है। तो गोया उस जमाने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 से 35 फीट के सड़क का तस्वुर दिया, जो आज 1450 साल बाद भी पीडब्ल्यूडी का पैमाना है कि सड़क 35 फीट चौड़ी होगी। वो किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने एक खातून को, हजरत सिफा बिन्त अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बाजार का मुहतसिब बनाया, अकाउंटेंट। क्या किया? 3 तरह के टैक्स लागू किए बाजार में। टैक्स ये लागू किए कि जो मुकामी है वो कम टैक्स देगा, जो बाहर से आके दुकान लगाएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो दूसरे मुल्क से आएगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकामी लोगों का और बैरी लोगों के लिए कानून बनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि देखो, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे 5-6 फीट का ही बनाकर नहीं भेजा है। उसके कहने का मकसद था कि सिर्फ तुम मेरे शक्ल सुबहात को अख्तियार करो, मैं ही से तुम्हारे लिए नमूना बनाकर भेजा नहीं गया हूं, बल्कि मेरा हर एक अमल तुम्हारे लिए नमूना है। तुम जो इस शहर को बसा रहे हो, ये मेरे नमूने का शहर है। बाजार तो इस तरह बनेगा। अब लोग दूर दूर से आए, कलमा कबूल करने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे। सबकी ख्वाहिश ये हो कि मदीना में हम बसे। मदीना एक शहर भी बन गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। कसरत से जब लोग आकर घर बनाने लगे तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा कि देख, तू अपने घर से दूसरे की घर की इतनी दूरी बाकी रख बीच में कि एक घर की सरगोशी, यानी शौहर बीवी बात करे, बाप बेटा कोई मशवरा करे तो उसकी गुफ्तगू सुनाई नहीं दे।
وہ حکمت. اور آج سائنسی اصول یہ کہتا ہے ایک گھر سے دو ہونی چاہیے تاکہ سورج کی روشنی پہنچے, جراثیم پیدا نہیں ہو اور تازہ. اے مسلمان, دنیا میں کوئی بھی مذہب کا آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کا اوتار یا اس کا پیغمبر یہ نمونہ پیش کیا ہے. یہ آئی اس لیے اس مسجد میں قرآن کو پڑھا جائے, سمجھا جائے اس پر, اور آپ صلی اللہ علیہ مسجد نبوی میں بلا مسجد کہاں ہے. آج ہماری مسجد تو سب لوگ نمازی نہیں, اور مدینے میں معاملہ یہ تھا کہ جن منافقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے منافق یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والے, اوپر سے مسلمان اندر سے کفر, وہ لوگ بھی مدینہ میں جو بسے ہوئے تھے تو کس بساتے ہوئے بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, کیونکہ پیارے آقا کی مسجد میں جو مسلمان نمازی کے لیے حاضر نہیں تھا وہ مسلمان نہیں. بوڑھا باپ مسجد میں, نوجوان بیٹا, بوڑھا باپ مسجد میں, نوجوان بیٹا نمازیں پڑھیں گے. ہم مغرب کی 3 رکعت 4 رکعت نہیں کریں گے, لیکن اپنے بیٹے کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں کریں گے. دہیج کا کوئی حکم نہیں دیا. نبی نے کہا کہ تم کو جو کچھ بھی دولت دی جاتی ہے, جو اولاد تمہارے لیے ہے, اس کا تم سے کل حساب لیا جائے گا. میرے بھائیوں کر رہے ہو, اللہ قبول فرمائے. ابھی صفی کے بھائی گئے تو میں جھگڑا کر لیا تھا, میں نے کہا رات کو کیوں رات کو جلسہ کرو گے, پیارے آقا کی سیرت پاک سے کوئی بھی بتا دو. رات بھر کا جلسہ ہمارے نوجوان کچھ علماء ہیں, میں ان کو بتا دوں تاریخ اس علاقے کی, کہ اس وقت ہمارے سیرس آبادی بھائیوں کی آبادی کم تھی ادھر. اس وقت سرجا پوریوں کے یہاں کیا ہوتا تھا, دین سے نا آگہی ہونے کی بنیاد پر, دین کے معلوم نہیں ہونے کی بنیاد پر, یا کیا ہوتا تھا بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس وقت تو اجمیر وغیرہ نہیں جا پاتا تھا, لوگ گھرے میں بولتا تھا اللہ اگر ہم کو بچہ دے دے تو ہم سب پیر کا ناچ نچائیں گے, ہے نا. اور اگر زمین کہیں کٹ رہی ہے ندی میں تو وہ نماز پڑھے یا نہیں پڑھے منت ضرور کرتا تھا کہ اللہ اب کی بار اگر میری کھیت بچ گئی تو ہم ستپیر کا ناچ نچائیں گے. میں نے مصیبت سے بچنے کے لیے بھی ستپیر کا ناچ, دھان کی فصل اچھی ہو گئی تو سدھرانے کے طور پر بھی ستپیر کا ناچ, بچے کو پکڑا بیماری نیمونیا کا تو بوڑھا بوڑھیا کی بیماری کہہ کر کے بچے کے لیے صحت کی دعا مانگنے کے لیے بھی ستپیر کا ناچ. اور ستپیر کا ناچ ہوتا تھا کب, یو پی میں جائیے وہاں جلسے کا موسم نہیں ہوتا ہے, موقع سے لوگ جلسہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ادھر کیوں گھنپوس میں جلسہ کرتے ہیں, کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کو دھن کٹنی کے بعد ہی 2 کام کرتا تھا لوگ, کھگڑا کا میلہ اور ستپیر کا ہی 2 کام تھا. دھان کاٹ لیتا تھا, اس پر کھساری کی لت ہوتی تھی آج سے 50 سال پہلے, اور اس کا کوئی کام نہیں تھا, وہ ستپیر کا ناچ نچانا بستی میں اور کھگڑا میلہ جانا. اس وقت ہمارے علماء نے دیکھا اس قوم کی عادت بگڑ گئی ہے, اور انہوں نے ایک غیر اسلامی عمل کو اسلامی کام سمجھ لیا ہے. تو جس طرح بچے کے ہاتھ میں چاقو ہو تو فوراً جا کے آپ چھینتے ہیں کیا, نہیں چھینے گا, چھینے گا تو کیا ہوگا, انگلی کٹے گی نا. اس وقت ہمارے علماء نے وہی حکمت سے کام کیا کہ اپنا قلم نکال کے دیجئے, لٹو دیجئے, بچے کا دوسرا ہاتھ ڈھیلا ہو جائے گا, وہ اپنا چاقو لے لیجئے اس سے. اس وقت ہمارے علماء نے کثرت سے رات کے جلسے کی, 3 رات کا جلسہ کر لیا, پھر پتا چلا کہ پورب ٹولہ میں ستپیر کا ناچ ہونے والا ہے, کیا ختم کر دوں. میں تو پہلے اسی لیے آیا ہوں کہ تاکہ اس کو پھاؤ کا وقت ہو آپ لوگ بازار کی طرف سے. تو اس وقت کیا کرتا تھا کہ اس وقت ہمارے علماء نے, اللہ ہمارے ان علماء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ہمارے علماء نے شدت سے جلسے کر کے اس خرافات کا خاتمہ کیا. میرے بھائیوں, وقت اور حالات بدلتے ہیں, وقت اور حالات کے ساتھ جو قوم نہیں بدلتی دنیا میں وہ قوم ذلیل و خوار ہوتی ہے. دیکھو میرے بھائیوں, کل تک ہماری بنیادی ضرورت تھی روٹی کپڑا. میری عمر, میں اس وقت 55 سال کا ہو گیا, اور میں نے لگ بھگ 40 سال کی زندگی, مجھے 40 سال کی زندگی کے سارے واقعات یاد ہیں. میں نے غربت دیکھی ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. الومنیم کے
बच्चों के लिए जनरा की रोटी खाते हुए देखा कि नहीं आपने? ये गुर्बत थी हमारे यहां। अल्लाह का शुक्र है आज हम नहीं। हमारा भीख मांगने वाला भी, उसके पास 3 जोड़े जूते हैं, 4 रंग का। मेरे भाई, आज घर के भी हम मोहताज नहीं हैं। सड़ी हुई छप्पड़ बहुत कम लोग, बेवा मिस्किन है तभी। रोटी भी आज है हमारे पास, कपड़ा भी, लेकिन से ज्यादा पामाल हम हैं। आप जिस मस्जिद के निस्बत से आज जलसा की, आप बोल दीजिए तो कि आपके घर में कोई गोबर फेंके और मस्जिद में गोबर फेंके। जो अल्लाह के घर, क्योंकि आपके और हमारे दिल में जो ईमान है वो खुदा से रिश्ता जोड़ता है। हम अपने, लेकिन आज इस मुल्क में हम और उस तक भी कहने की इजाजत नहीं। मने एक तरफ बेटे को रोने की भी इजाजत नहीं, वो खौफ का साया हम पर। यही वो मुल्क है मुसलमानों, कि इस मुल्क में हमारे बाप दादा ने 700 साल तक हुक्मरानी की, और हुक्मरानी की वजह से ताकत की बुनियाद पर नहीं की थी। उस वक्त ब्राह्मण राजपूतों ने मुस्लिम बादशाह